अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरा नाम है असद तबानी, मैं मैक्रो पाकिस्तानी का एडिटर इन चीफ हूँ और आज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है पाकिस्तान में, इसकी क्या सूरत हाल है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसे बेहतर करने के लिए। इस डिस्कशन को लीड करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम मिस्टर रेहान अख्तर, who is the Chief Digital Officer of Karan Das Pakistan. Mr. Akhtar, thank you so much for joining us. इससे पहले कि हम सवालात की तरफ जाएं, perhaps आप briefly अपना background share कर सकते हैं, because I believe you've been involved in this field for quite some time now. Yeah, thank you, Asad. Thank you for having me on this forum. So I've been working with Karan Das for about 5 years now. Karan Das itself is only a 6-year. It is a mission-centric organization. We have the mission of empowering Pakistanis, and the way we empower Pakistanis is to help them connect with the financial ecosystem. There are a lot of people in Pakistan, not only people, but companies as well, when it comes to SMEs, who are not connected with the formal banking channels. And we carry this mission. We are a not-for-profit organization. We are funded by both Bill and Melinda Gates Foundation as well as FCDO, which is UK's aid mission, to help carry out this important mission. And I think that also lends nicely into the first part of the conversation जो मुझे cover करनी थी, and that was about exactly looking at the statistics on financial inclusion in Pakistan. तो जैसा आपने mention किया, you work with Karan Das works with people who are not served by the formal sector. So according to the most recent data available by the State Bank, which was the Access to Finance survey in 2015, उसके मुताबिक about 23%, 23% Pakistan की population is served by the formal banking sector, और उसके अलावा आपकी 53% है, which is actually completely not, financially excluded, is not being served by either formal or informal means. और अगर हम इसे regional अगर comparison भी देखें, and this data is from 2014 World Bank Economic Outlook, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 13% of Pakistanis have bank accounts, जबकि अगर हम regional countries से compare करें तो India has 53%, Sri Lanka 83%, और even Bangladesh में 31%. So looking at these statistics, I wanted to get into a little bit of why how you would describe the state of financial inclusion in Pakistan, और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजूहात हैं because of which Pakistan seems like it is lagging behind in this field, even compared to अगर हम regional countries से compare करें. Sure. So, Asad, there are newer stats as well. So there's another survey called Financial Inclusion Insights. और उस सर्वे के मुताबिक जो है, financial inclusion, which is basically measured as a number of people having a bank account or access to a financial institution, and it is a demand side survey. So it randomly लोगों से पूछा जाता है, do you have an access to an account or not, and based on the reply, it has been sort of then categorized, are they financially included or not. So the numbers are around 21%. इसमें एक और स्टैटिस्टिक मैं आपको दे दूं कि जो खवातीन है इसमें, they are very, very low. So not only the overall sort of number of Pakistanis who have a bank account are low, but on top of it, women have very low participation. जो वजूहात हैं वो कई हैं और multiple हैं, and that's where it's very difficult for a country like Pakistan to embark on a steep growth when it comes to financial inclusion. और इसमें कई सालों से जो है वो काम हो रहा है। एक तो बड़ी वजह ये है कि हम as a nation we love cash, and there are many reasons why we love cash. Cash is informal, cash is convenient. We don't want to be documented
I'm not sort of going to make a judgment on कि लोग क्यों डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहते, लेकिन the fact is कि there is a huge reluctance. बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये लगता है कि documentation is difficult, and sometimes when you look at some use cases the documentation is difficult. आपने अगर बैंक अकाउंट खोलना हो तो आपको अच्छा खासा मतलब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है. सो एंड देन इट एड्स टू दैट फ्रिक्शन कि ऑलरेडी एक माइंडसेट है कि यू नो आई कैन डू माय बिजनेस, आई कैन गेट माय लाइफ गोइंग यू नो विद कैश ओनली. तो फिर अगर ऑन टॉप ऑफ इट अगर उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन हो तो फिर यू नो पीपल विल डेफिनेटली विल नॉट बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. दूसरा फिर ये है कि एंड दिस इज समथिंग, वैसे तो इसमें रीजनल कोई हमें वो मिसाल मिलनी चाहिए थी एग्जांपल, लेकिन वो नहीं है. जैसे आपने बताया इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर मच अहेड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन. और वो ये है कि आई थिंक एज अ नेशन वी आर नॉट टू कीन ऑन एफिशिएंसी. तो हम वो लाइन में लग के अभी भी तैयार हैं कि अपना 3 घंटे जो हैं वो लगा लेंगे, लेकिन वी विल नॉट लर्न और स्ट्राइव टू लर्न न्यूअर मेथड्स और डिजिटल मेथड्स. सो इसमें इश्यूज जो हैं वो डिमांड साइड पे भी हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे लोग हैं वो नहीं चाहते, उनको दिक्कत आती है, उनको इश्यूज हैं, उनके अपने लिटरेसी के इश्यूज हैं, उनका अपना ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस. लेकिन इसकी एक दूसरी जो इशू की जो सॉर्ट साइड है वो सप्लाई साइड भी है. और सप्लाई साइड ये है कि आज के दौर में अगर आपने कोई मोबाइल अकाउंट खोलना है, विच इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ओपन एन अकाउंट, you need to have a phone, you need to have a SIM. और पाकिस्तान में तकरीबन 120-130 मिलियन सिम जो हैं वो लोगों के पास हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल सिम्स बहुत ज़्यादा हैं. फिर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है इस वक्त इंटरनेट की, वो आई थिंक हम सबको ही पता है कि अगर आप इवन बड़े शहरों में भी लॉट ऑफ टाइम इट इज़ अ चैलेंज, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन पे जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा पैची हो जाता है. और लोग जो हैं, और दिस इज समथिंग यू नो व्हिच हैज बीन रिसर्च टाइम एंड अगेन, तो अगर आप कोई मोबाइल के ऊपर कोई एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं, वॉचिंग अ वीडियो या प्लेइंग अ गेम, तो अगर इंटरनेट बीच में चला भी जाता है, सो देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो एप्रीहेंशन. लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जब आप ऐप यूज करते हैं, सो पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव कि अगर बीच में इंटरनेट किसी वजह से खत्म हो गया, वो चाहे जो भी उसकी रीजन हो, सो यू नो व्हाट विल हैपन, एंड यू नो दे बेसिकली हैव दिस ट्रस्ट इश्यूज. सेकेंडली, जो आपका स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बढ़ तो रही है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन. और फिर जिन लोगों के पास फीचर फोन है, उनको जो USSD है, यू नो एक स्ट्रिंग होता है जो आप डायल करते हैं, उसके जरिए इसको ऑपरेट करना होता है. और उसको ऑपरेट करने के लिए आपको यू नीड टू, आई मीन इट्स नॉट एन आइकॉन जिस पे आप क्लिक करेंगे, यू नीड सम काइंड ऑफ लर्निंग एबिलिटी, कोई न्यूमरेसी की आपको वो चाहिए होती है. एंड लॉट ऑफ पीपल आर देन यू नो वेरी हेजिटेंट. इसी वजह से जब 2000 यू नो मिड 2000s के अंदर जब ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस आया, व्हाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइसेंस वाज के ये जितनी भी कंपनीज जो कि ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस लेंगी ये वॉलेट खोलेंगे, बट वेरी क्विकली यू नो द मॉडल शिफ्टेड टू एजेंट लेड मॉडल. सो पीपल फेल्ट कन्वीनियंट कि वो एजेंट के पास चले जाएं और उसको कहें कि मेरा बिल पे कर दो, और उसको कहें कि मेरे ये पैसे ट्रांसफर कर दो, ये पैसे निकाल दो, rather than learning themselves. तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो एजेंट लेड मॉडल है या एजेंट बेस्ड असिस्टेड ट्रांजैक्शन जो है, दैट बिकेम यू नो द वे ऑफ बैंकिंग अदर देन ब्रांच. सो ब्रांच से तो बाहर निकल आए, लेकिन वो एजेंट के ऊपर भी लाइनें लगना शुरू हो गई.
अब हम एक तीसरा फेज देख रहे हैं जिसमें पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल एप्स एंड मोबाइल वॉलेट्स themselves। और हमने पिछले तकरीबन 18 महीने से 24 महीने में ये देखा है कि देयर इज नाउ लॉट ऑफ मूवमेंट नॉट ओनली इन द डिमांड साइड, जिसमें कस्टमर्स आर sort of making an effort to learn and understand the financial apps and financial ecosystem। और वो कोविड ने जाहिर बात है एक बड़ा धक्का जो है वो दिया है डिमांड को। लेकिन on the other hand, suppliers, which is the fintechs and the banks, they have also come forward। और आप आई थिंक अगर न्यूज़ फॉलो करें पिछले 6-7 महीने की, सो यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर देयर इज दिस वन न्यू फिनटेक दैट इज अनाउंसिंग देयर ऑपरेशंस एंड देयर स्टार्ट। सो आई थिंक अब हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहां पे पिछले 10 साल की जो मेहनत है उसकी रंग लाने का एक टाइम है। एंड लेट्स सी where we go from here। I think that's a good point that you made, and अगर आप इस point पर थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं कि पिछले 5-10 सालों में ऐसी क्या developments हुई हैं, because अगर दूसरे statistics भी देखें तो जैसा for example मेरे पास पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी से जो statistics मैंने निकाले उनके मुताबिक 2011 में only 17% of Pakistanis had either an account or a mobile money service provider, जबकि 2017 में that was 35%, so it had doubled in that time। So even though हम low base से शुरू कर रहे हैं, लेकिन it seems clear कि there has been some progress in about the last 5 or 10 years। तो ऐसे क्या steps लिए गए हैं which you think have been helpful in development of this field? So इसमें देखें एक जो बड़ी important चीज है वो ये है कि you need for any, I mean, and before I answer this question, let me just sort of give you a view of for an ecosystem to make a shift from wherever it is, there has to be some enablers in the ecosystem। और उसमें एक enabler ये होता है कि regulatory environment क्या है, what does the regulation allow you to do and what does the regulation not allow you to do। और बैंकिंग तो वैसे ही heavily regulated है, FATF के खास तौर पे उसके बाद तो इस किस्म, so we need to know each and every customer and each and every transaction, etc. So bearer जिस किस्म के भी instruments थे, चाहे वो price bond थे या कुछ भी था, वो we have sort of done away with that। So पिछले 5 साल में एक तो बड़ा चेंज ये आया है कि जो दोनों रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, both of them have become very pro to digital payments, digital accounts, and खासतौर पे आखिरी पिछले sort of 2 सालों में तो you would see lot of new pro development regulations which have been shared। मिसाल के तौर पे आप रिमोटली कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, केवाईसी वीडियो के जरिए कैसे कर सकते हैं, मर्चेंट्स को कैसे डिजिटली ऑन बोर्ड कर सकते हैं, इवन सो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट भी जो है विच कैन जस्ट बी ओपन रिमोटली। सो उसमें रेगुलेटर्स हैव एम्ब्रेस्ड the digital as a norm and have created a number of regulations and policies to support that। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर होता है किसी भी इकोसिस्टम में कि क्या गेम सेट करता है जो रेगुलेटर और पॉलिसी मेकर्स हैं। दूसरी चीज जो इसमें पिछले 5-7 साल में हुई है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्लेयर है, जिसने आके कोई इनोवेशन करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, कस्टमर्स को लेके आना है, सो दे हैव आल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई वुड नॉट से कि अभी भी वो कोई उनका पुख्ता ईमान है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन, कुछ लोगों का रीजन ये है कि दे वांट टू बी द चैलेंजर इन द मार्केट, और कुछ लोगों का रीजन, लोगों से मुराद बैंक्स का रीजन ये है कि दे वांट टू compete with the challenger, so they want to protect their turf। So almost all of the financial institutions have embraced digital। और पिछले 5-7 सालों में you would see कि
the companies have appointed, the banks and financial institutions have appointed dedicated sort of staff, even to the chief digital officer or to that level, to drive it through a strategic agenda. इससे पहले होता ये था कि there was this ADC channel जो कि जिसको alternate delivery channel कहा जाता है, और वो जो नाम है वही बेसिकली आपको उसकी जो काम है उसको वो बताता था. सो alternate was, so branch का alternate जो है उसको कहा था, so जो आपका ATM है that was the alternate delivery channel, और उसका KPI यही होता था कि जी बस उसमें कैश आउट करना है और कैश इन करना है. इसलिए आप ATM में भी देखें तो बहुत अरसे से कोई खास इनोवेशन नहीं है अदर देन कैश इन एंड कैश आउट. और अब आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि biometric be enabled है, so you may not need to insert the card, you can just operate by doing your biometric, etc. So दूसरी बड़ी चेंज ये आई है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जितने प्लेयर्स हैं they have made a shift, और उसमें आई थिंक चैलेंजर्स का बड़ा रोल है कि उन्होंने आके एक नई मार्केट क्रिएट की है, और उसकी वजह से जो इनकम्बेंट्स हैं they have been forced to react. और तीसरी जो एक इसमें एक जो चेंज आया है वो ये है, और उसमें स्टेट बैंक और रेगुलेटर्स का काफी बड़ा हाथ है कि they have allowed a new sort of type of companies to form, which is fintechs. और ये fintechs जो हैं ये बैंक्स नहीं होंगे, ये एक अपनी नीश जो हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, और उसमें they are allowed to form a company, offer services, और उसमें SECP ने सैंडबॉक्स की फैसिलिटी दी है जिसमें आप पायलटिंग उनके सैंडबॉक्स के अंदर जाके कर सकते हैं. स्टेट बैंक भी एक पायलट टू लाइसेंस का रूट जो है वो देता है. और फिर ऑन टॉप ऑफ इट जो इन्वेस्टर है who is going to back these companies, so the investors have also started showing keen interest in Pakistan, और उसके लिए to lowering down sort of the burden on foreign investors कि अगर वो बाहर से पैसे लेके आते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं, और उसमें सेंट्रल बैंक ने SECP ने काफी उसके अंदर भी रिफॉर्म्स को लेके आए हैं. तो हम एक वैसे देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स और नई कंपनीज की फॉर्मेशन, और उसके अंदर एक बज है, बट उस बस के अंदर जो है वो फिनटेक्स भी आपको नजर आ रही है. तो इन सारी चीजों की वजह से एक इंक्रीज है बोथ ऑन डिमांड साइड आल्सो सप्लाई साइड, जिसकी वजह से वी हैव स्टार्टेड टू सी the rise in financial inclusion and digital payments specifically. Unfortunately, one problem that is still persisting वो है gender disparity का, and कुछ statistics भी अगर हम इस पे देखें तो again अगर हम State Bank का Access to Finance survey के मुताबिक कि women have about half as many bank accounts as men do in Pakistan. 2015 में ये statistic था. इसके अलावा again PMIC के statistics के मुताबिक women are about one third as banked as men are in this country. So again, you've been in this field for a long time. So आपने क्या देखा है कि why is there such a vast gender disparity in this field? और क्या steps लिए जा सकते हैं to help bridge this divide? And I'm sure your organization is also involved in the efforts to some extent. जी. So, देखें जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि women have a disadvantaged starting point when it comes to men. So शनाख्ती कार्ड तो सबके बने हुए हैं, ये एक आई थिंक एक बड़ा अच्छा वो पॉइंट है, लेकिन इसमें एक सोशल नॉर्म्स भी आते हैं. मिसाल के तौर पे in lot of households जो सिम है, even if the woman in the house is using वो चाहे वो मदर हो या डॉटर या सिस्टर जो भी जिस भी रिश्ते में हो या वाइफ हो, तो वो यूजुअली आदमी अपने नाम पे लेता है. और हमारे कुछ ऐसा कल्चर है कि उसकी ओनरशिप जो है वो खवातीन के नाम पे नहीं होती. उसमें ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस टू for this behind और saying कि बिहेवियर सही है या गलत है, लेकिन ये फैक्ट है जिसकी वजह से जब सिम ही खातून के नाम पे नहीं है. तो एक स्टेटिस्टिक जो मुझे पता है कि from a SIM point of view, I think women own about 9 to 10% of the SIMs जो उनके अपने नाम पे.
जबकि खवातीन की आबादी तो 50% है। तो उस हिसाब से देर आर अ नंबर ऑफ फोन्स आउट देयर जो कि खवातीन के नाम पे नहीं है, और अगर आपके नाम पे सिम नहीं है तो अकाउंट उस नाम पे खुल सकता है जिस नाम पे सिम है। दैट्स वन सॉर्ट ऑफ बिग सॉर्ट ऑफ चैलेंज। अच्छा, सिम के अलावा आप विदाउट सिम भी अकाउंट्स हैं तो जिसमें आप ऐप के थ्रू जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी आपकी जो फोन की ओनरशिप है वो होना जरूरी है, क्योंकि उस पर पिन आता है, वो सारा कुछ आता है। सो इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ a backward starting point sort of for firms हैं जिसमें ये तस्वुर किया जाता है कि अगर पैसे का मामला है तो वो जो मैन ऑफ द हाउस है वो मैनेज करेगा, not the woman in the house. जबकि there is a lot of research which basically depicts कि it's actually the reverse. So women of the house actually is a better budget manager. और वो अगर आप जो पैसे हैं जो भी सेविंग्स हैं वो अगर वुमन ऑफ द हाउस मैनेज करेगी तो वो शी विल एक्चुअली पुट इट टू बेटर यूज, और आदमी जो है वो उसको एक्सपेंस आउट कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा फिर इसके अंदर एक जो दूसरा मतलब तीसरा जो इसमें इशू है वो ये है कि जो बैंक्स हैं, चूंकि देयर आर वेरी लिटिल डिमांड फ्रॉम वुमेन, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका लो है, और जो मैंने आपको CNIC सर उसका एक इशू बताया, तो उसकी वजह से जो बैंक्स हैं उसमें भी देयर इज वेरी लेस स्किल्ड स्टाफ टू अंडरस्टैंड वुमेन एज अ सेगमेंट, वुमेन एज अ टारगेट कस्टमर। और हम उसमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि वुमेन जो है वो एक ही कैटेगरी है। वो वुमेन की एक कैटेगरी नहीं है। Women as a housewife has different needs. Women as an entrepreneur has a different need. Women as a student has a different need, etc. And the categories go on and on. So usme what the banks have not been able to do is appreciate that women as an economic sort of citizen, uski kya needs hain aur usko kaise fulfill kiya jaye. अच्छा, इसमें देर आर लॉट ऑफ मॉडल्स। सो माइक्रो फाइनेंस में देर आर मेनी मॉडल्स जिसमें उन्होंने खवातीन को टारगेट किया है और उसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट और उस पर भी काम किया है, एंड दे ब्रॉट इट इनटू द फाइनेंशियल फोल्ड। बट बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द डिस्पैरिटी इज सो ह्यूज, और फिर बहुत सारी खवातीन जो हैं जो खासतौर पर अगर आप रूरल में चले जाएं तो दैट इज दे आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। सो उनके जो इकोनॉमिक्स है, जो उनकी जो इनकम है, वो अगर जमीन से आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि वो खवातीन के नाम पे आ रही है और उनके अकाउंट में जा रही है। इट इज बेसिकली अ हाउस होल्ड काइंड ऑफ एन इनकम। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से बैंक्स ने भी फोकस नहीं किया, और डिमांड भी जो है वो एक तरह से स्प्रेस्ड है, और वो गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आप लेके आते हैं तो उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी होते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जो भी इंटरवेंशन हो उसमें जो खवातीन के ऊपर इम्पैक्ट है उसको एनालाइज किया जाए और उसकी बाकायदा टारगेटिंग की जाए कि वो जो उसका इम्पैक्ट है उस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का वो कैसे कम से कम हो, बल्कि पॉजिटिव कैसे हो खवातीन के ऊपर। इसमें एक बड़ा वेलकम जो चेंज है, ये स्टेप है वो स्टेट बैंक का है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक जेंडर स्ट्रेटजी लॉन्च किया है, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी उसका नाम है, और उसके अंदर एक पूरा फ्रेमवर्क है जो गाइडेंस देता है टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि व्हाट डू दे नीड टू डू। और उसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दे नीड टू ट्रेन देयर ओन स्टाफ of how to deal with women customers. A lot of time why women do not feel comfortable interacting with the bankers or agents is because there's a male on the other side, और वो भी एक reluctance और उसमें वो होती है। तो I think हमारा अपना जो एक social cultural setup है उस हिसाब से the banks have to figure out कि वो अपनी branch को या अपनी जो इंटरेक्शन है विद वुमेन कस्टमर्स उसको कैसे और ईज आउट कर सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। और ये जो पॉलिसी है जो स्टेट बैंक ने इशू की है, इसमें द गाइडलाइंस एट मेनी लेवल, जिसमें बैंक्स को ये भी कहा गया है कि वो प्रोडक्ट्स वुमेन स्पेसिफिक बनाएं,
and do not expect women to just use any product. मतलब आप हर कैटेगरी में देख लें, there are specific products for women, and that's how every category in the world operates. लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग है उसमें यही एक्सपेक्टेशन है कि जी वो they will go through the same sort of documentation and issue है इस पे, लेकिन काफी we also have a dedicated program to address the challenges. जी, एंड हमने जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात की. इसके अलावा व्हाट अदर डेवलपमेंट्स वुड यू लाइक टू सी इन दिस फील्ड इन द कमिंग इयर्स? लाइक आई थिंक एक रूरल अर्बन डिवाइड भी है जो इशू है इन टर्म्स ऑफ द रूरल सेगमेंट बीइंग अ लॉट मोर अनबैंक्ड देन पीपल इन अर्बन एरियाज. इसके अलावा आप क्या देखते हैं, व्हाट would you like to see in the coming years to bridge some of these gaps that are existing or being exacerbated? Sure. So I mean, so देखिए इसमें and of course there's always this debate that while some countries the part that they have sort of chosen is or the part that they have followed is, even if it was not chosen, but this is what they ended up, that there was a trickle down. So अगर आप top 40%, 50% को, and by top what I mean is economically, अगर आप उसका कोई एक pyramid बनाए overall population का, अगर आप उनको बैंक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो जो बाकी जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और उसको ट्रिकल डाउन वो कहते हैं. इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट है और वो ये है कि ये उस सूरत में होता है कि अगर जो आपका टॉप है, यानी कि जो आपका लेट्स अज्यूम कि जो आपका अर्बन है और जो रूरल है वो कनेक्टेड है. हमारे यहाँ बिल्कुल कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे जो बड़े सिटीज़ हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सो इसमें ठीक है लोग नौकरी के लिए उसके लिए तो वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, लेकिन जो रूरल है उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स है. सो और हमारे पास हैं, वी हैव रूरल फोकस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल. सो आई थिंक वो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि ये कोई ट्रिकल डाउन होगा. वी नीड टू स्ट्रेंथन द रूरल फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल, जो कि उसके ऊपर फोकस्ड हो, जिनकी इकोनॉमिक्स, जिनकी आउटरीच, जिनका ब्रांड, जिनकी प्रोडक्ट्स ही उसके ऊपर फोकस्ड हो. तो एक बड़ी बात होती है कि जी ऊबर आ गया तो, और फिर बात होगी कि जी हर चीज़ क्यों नहीं ऊबर हो सकती, तो ट्रैक्टर क्यों नहीं ऊबर हो सकता, लेकिन वो अभी तक कॉन्सेप्ट में ही है, बट नोबडी हैज गॉन हेड एंड रियली क्रैक्ड दैट कोड. So there are a lot of opportunities. Agriculture के अंदर, Pakistan is a agriculture based country, and there are a lot of there's a lot of money that flows with agricultural value chains. और उसको अगर digitize किया जाए and somebody comes forward, so I think that's something that I would really wish for. क्योंकि अर्बन के अंदर तो देखें ये फिनटेक्स और ये सारा कुछ जो है, और अर्बन में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, सो वहाँ पे एक एडॉप्शन का तो एक फिनोमेना चल पड़ा है, लेकिन आई थिंक देयर इज दिस बिग रिस्क के हम मिस आउट कर जाएंगे. आपने राइटली पॉइंट किया असद, जो रूरल हमारे सॉर्ट ऑफ एरियाज हैं, और ये डेवलपमेंट का ये कई दफ़ा गैप रह जाता है कि वो डेवलपमेंट जो है वो फोकस हो जाती है इन दी अर्बन सेंटर्स, और फिर जो पसमानदा इलाके हैं वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं. सो आई थिंक वहाँ पे फोकस बिल्कुल होना चाहिए. अगर हम इससे एक रिलेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स की, और ये स्पेशली कोविड-19 के टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए डिजिटल पेमेंट्स में, बिकॉज एंड स्पेसिफिकली ड्यू टू द पैंडेमिक एज वेल, जो मोबाइल वॉलेट ट्रांजैक्शंस हैं पाकिस्तान में, देव लाइक मल्टीप्लाइड. तो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें, स्टेट बैंक का डेटा देखें, अगर हम सेम क्वार्टर कंपेयर करें अप्रैल टू
जून 2019 से 2021 का, तो in 2019 you had 45 million transactions worth 180 billion rupees, और 2021 में that was nearly 200 million transactions, the value of 800 billion rupees. So in both cases आप देख रहे हैं कि nearly quadruple हो गए हैं for the same quarter in just the space of 2 years. तो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि what digital banking looks like in Pakistan? Why have we seen this massive change? Obviously, the pandemic is one reason, but and generally as well कि आपने शुरू में भी थोड़ी बहुत cash reliance की बात की थी पाकिस्तान में. Why is moving towards digital payments like good for a country? Is it good for a country? ये क्या अच्छी development है? सो देखें, अब ये जो खासतौर पे आप जिन क्वार्टर्स की बात करें, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो चेंज आया था वो ये है कि स्टेट बैंक ने मैंडेट किया था कि जो एंड कस्टमर प्राइस है फॉर इंटरबैंक फंड ट्रांसफर वो जीरो होगी, जिसकी वजह से लॉट ऑफ कस्टमर्स ओवर ऑन द साइड लाइन दिस सेट के हमें वैसे भी जीरो जो है वो फ्री में बड़ी चीजें पसंद हैं. सो यू नो वो जो अडॉप्शन का जो अगर कोई एप्रीहेंशन थी भी, सो दे टेस्टेड इट आउट. ये एक चीज बड़ी क्लियर है, और ये यू नो इफ यू लुक एट एनी डेटा फ्रॉम द बैंक कि इसमें ट्रायल जो कस्टमर कर लेता है और वो एक कोई भी यूज केस के ऊपर इस्तेमाल कर लेता है कि आपने किसी को पैसे भेजने हैं या आपने बिल पे करना है और आपको जल्दी है और आप जा नहीं सकते और आपने एक दफा पे कर दिया, सो यू फाइंड द कन्वीनियंस एंड देन यू इंटरनलाइज दैट यूज केस, और फिर उसके ऊपर आप जो है ना वो बिल्ड करते जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स who may be using mobile banking only for one use case, mobile top up only, and which is fine, whatever sort of is their relevance for that financial services, as long as they're sort of using that. So इसमें एक तो ये होना है कि जो फ्यूचर है डिजिटल बैंकिंग का, उसमें जो पेमेंट्स हैं दे शुड बी फ्रिक्शनलेस, इट शुड बी फ्री. किसी को पैसे देना, मैं आपको अगर 100 रुपए वो कैश देता हूं तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है हम दोनों के दरमियान, लेकिन मैं अगर आपको डिजिटली 100 रुपए देता हूं तो उसके क्यों बीच में कुछ रुपए हैं जो किसी को हमें देने की जरूरत है. तो इस फ्रिक्शन को रिमूव किया था स्टेट बैंक ने फॉर द कोविड पीरियड, और अभी भी अप टिल 25,000 इट इज जीरो. और वो मुल्क जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक स्टीप कर्व पे लेके गए हैं, वहां पे पेमेंट जो है वो फ्री होती है, बिकॉज दैट्स हाउ ओनली यू कैन कम्पीट विद कैश. जो बेनिफिट है डिजिटाइजेशन के वो तो बेतहाशा है. पहली बात तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो कम होती है, यानी कि आपकी फॉर्मल जो वो है बैंकिंग सिस्टम उसके अंदर पैसे आते हैं, उस पैसे को किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय किया जा सकता है जिससे जीडीपी ग्रो करेगी. अब आपके मैट्रेस के नीचे अगर 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, सो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी. तो जो बैंकिंग मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली तभी अप्लाई हो सकता है अगर द मनी कम्स इनटू द बैंक and the banking system. तो एक तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमी को फायदा है. दूसरा इसमें इंडिविजुअल्स को बहुत बड़ा फायदा है. कैश कैन बी स्टोलन, कैन बी मिसप्लेस्ड, डिजिटल कैन नॉट बी स्टोलन, कैन नॉट बी मिसप्लेस्ड. दूसरा फिर जब आप एक बैंक के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू विल सी इन कमिंग सॉर्ट ऑफ मंथ्स एंड इयर्स, सो एक आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनता जाता है. उस डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर देन देयर विल बी फिनटेक्स हु विल एनालाइज दैट डेटा. आपने कितनी दफा ट्रांजैक्शन की, किसको पे किया. तो मैंने अगर 10 दफा असद को कोई चीज पे की है, सो दे विल देन यूज यू नो एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग टू फिगर आउट कि वो किस वजह से पे की है. पेमेंट में कॉन्टेक्स्ट का एक बड़ा एलिमेंट होता है कि मैं आपको क्यों पे कर रहा हूँ. अभी मेरा बैंक जो है वो मेरे से पूछता है क्यों आप पैसे पे कर रहे हैं. मैंने कहा बैंक से कहा यार मुझे बताएं मैंने किस लिए पैसे पे किए थे. दिस वी कांट पुल दैट रिपोर्ट. सो अभी जो पेमेंट्स है, ट्रांजैक्शन है, दे काइंड ऑफ डम. इसमें जब एक इंटेलिजेंस आएगी तो फिर उसमें ये किया जा सकता है. मैंने आपको अगर लेट्स से कुछ सोशल पेमेंट्स किए हैं या वो वेंट फॉर लंच टुगेदर या जो कुछ भी है, तो उसके अराउंड या वो ट्रेवल टुगेदर और मैंने डेवो की आपको पेमेंट की है जो आपने टिकट खरीदी थी और समथिंग व्हाटएवर. So then, you know, the banks and other fintechs can pick up that data and build products on that. वो इंश्योरेंस है, वो क्रेडिट है, वो सेविंग्स है या जो कुछ भी है उसमें. So वो सारी चीज जो है फिर आपकी उसमें एक another level of market, you know, that will be activated. So इस वक्त जो
कैश की वजह से, मैंने अगर आपको कैश दिया है सिर्फ मुझे और आपको पता है, नोबडी एल्स नोज कि उसको इस ट्रांजैक्शन को क्या करें। सो जो मल्टीप्लायर की बात हो रही है, जो की जाती है, वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी important. Both citizens will benefit, and of course, the country will. Yeah. And lastly, I would like to know briefly, आप अगर करंदाज के बारे में थोड़ी बात करें कि what exactly it's involved in and how it's working to boost financial inclusion in Pakistan or other goals that it has. Sure. So हमारे चार डिस्टिंक्ट वर्टिकल्स हैं। सो एक जो है वो करंदाज कैपिटल है। करंदाज कैपिटल जो है वो एसएमईज की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रहा है, एक्सेस टू फाइनेंस के लिए काम कर रहा है। और उसमें हम बैंक्स के साथ मिलके और इंडिपेंडेंटली भी हम एसएमईज की जो इश्यूज हैं, क्योंकि वो जब कोई लोन लेने जाते हैं बैंक के साथ, तो वो बेसिकली सारा कोलेटरल बेस्ड लोन होता है कि उसमें अगर आपके पास कोई कोठी है तो वो रखवा दें। तो जबकि इन्वेंट्री बेस्ड, कैश फ्लो बेस्ड, इस किस्म के लैंडिंग मॉडल्स नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एसएमई को जो लैंडिंग है वो बहुत ही लो है। जैसे आपने बाकी कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान की इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन बताई, तो एसएमई या जो कंपनीज हैं उनको भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत ज्यादा लो है। सो वहां पे वी बेसिकली एट अ हाई लेवल आर डूइंग दैट। हमारा जो दूसरा बड़ा काम है वो हम विमेन वेंचर्स का हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम खवातीन बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं और उनको फंडिंग देते हैं और उनको बिजनेस सर्विसेज भी देते हैं। एंड द होल आइडिया इज कि विमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस एज वेल। इसके अलावा हमारा एक रिसर्च का पूरा विंग है जो कि हमारा डेटा पोर्टल है, यू मस्ट विजिट दैट अगर आपने नहीं देखा। उसमें हमने बड़ी अच्छी रिपोजिटरी ऑफ डिफरेंट डेटा इकट्ठा किया फॉर रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, एंड वी बेसिकली create knowledge by doing our own research or referencing to other research which has been done, and we also publish position papers and policy papers as well. और फिर जो चौथा एरिया है जो मैं मैनेज करता हूँ विच इज डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ इस मुल्क में काम कर रहे हैं। एक तरफ हम स्टेट बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं इन डेवलपमेंट ऑफ रास। दिस इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो कि लॉन्च हुआ है अर्लियर दिस ईयर। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद मल्टीपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन हेल्पिंग देम डिजिटाइज, जिसमें BISP है, नेशनल सेविंग का प्रोग्राम है, और SCCP के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी डिजिटाइजेशन। और फिर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भी काम करते हैं जिसमें हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडरटेक करते हैं। सो द होल आइडिया इज टू हेल्प द सप्लाई साइड एंड सॉल्व इश्यूज ऑन द सप्लाई साइड, बी दैट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और मोटिवेटिंग द प्राइवेट सेक्टर बाय catalyzing innovation and creating projects and products, or helping them create products which can bridge the gap. So that's the overall objective of Karandaz. That sounds great, and I wish you all the best in your goals. And thank you so much for joining me today as well. This was a very, very informative discussion.